Anyone, please respond to the chat. Yes or no? Am I audible? All well, sir. ठीक हो गया लग रहा है. Extremely sorry, there was this internet connection problem. That is the reason why we were offline. I understand your predicament. Okay, so some glitch was there. So have this one thing in your mind, that this is the part second of our first class. Okay, so whatever time we have left, we will march towards it and then we'll wrap it up. Now, so we were discussing classification of economic system. So I told you that there are many systems like capitalist, communist, socialist, mixed, developing, but so many things are there. Okay, so what we are going to do, we will classify it that such sort of confusion will never occur to you. Okay, and I told you the basic technique, basic way through which one can classify, one can differentiate between things is to find certain parameters. So the parameter number one, on the basis of political ideology or the ownership of resources. ठीक है, तो ये अपना पहला पैरामीटर है. ठीक है, सेकंड पैरामीटर इज ऑन द ability to utilize resources. This is criteria number 2. And the third one is based on economic interaction between agents and variable. Okay, so these are the three conditions. On this we will try to delineate other things. तो पहला, okay, on the basis of political ideology or the ownership of the resource. On this basis, we have capitalist system, we have command system, and we have as well mixed. कमांड अब दो तरह का होता है, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट. फाइन, कमांड दो टाइप का. फाइन. अब ऑन द एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्स, किसको कितना, इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे. डोंट गेट स्टार्टल्ड, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल एज वेल. Just laying down the foundation for you so that you will understand. अब अगर इसका हम देख लें तो इसमें हो गया डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड. तीन तरह का हमने सुना है, वो तीनों हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here you can delineate as
macro economy and microeconomy. Okay, फाइन. रिटन एवरीवन. इसको लिखना बहुत जरूरी है. लिख लिया आप लोग, सब लोग. कैपिटलिस्ट, कमांड, मिक्स्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी. ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, सब लोग लिख लीजिए. बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं तो बाद में नहीं बनेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ, आई विल रीड इट फॉर यू, प्लीज थोड़ा फोकस कीजिए. क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस. नंबर टू, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेस. नंबर थ्री, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेक्शन. थर्ड है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट्स एंड वेरिएबल्स. बेस्ड ऑन economic interaction, based on economic interaction between agents and variables. एजेंट और वेरिएबल. ठीक है, अब ऊपर चलते हैं थोड़ा. अंडर द फर्स्ट हेडिंग you have capitalist, command and mixed. Command is bifurcated into communist and socialist. Here दूसरा नंबर बॉक्स, developed, developing and underdeveloped. Okay, अब देखिए यहां पे एक चीज और. everyone take a look here. Developing system is newly industrialized economy, NIE. Okay, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, एनआई की जगह लिखिए न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी. ओके, डेवलपिंग, जैसे कि ये दो टाइप था, कमांड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट. सिमिलरली डेवलपिंग इकोनॉमी इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन टू वेज. एनआईई, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, एंड ईएमई, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी. न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी. और लास्ट जो था वो आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी. वी विल डील अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. फाइन, चलिए. एवरीवन रिटन? I believe you have. Fair. Let's try and understand communist. Okay. Communist system, sorry, one moment. कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. फाइन, अब ये क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है, नाउ टेक अ लुक. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स. ओके, अब मेनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, factors of production, that what are the things that are essential to produce something. If you want to produce this marker, okay, or this stylus बोलते हैं इसको. okay, अगर ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं, what are the things that you need? You need land. हवा में तो फैक्ट्री बनाओगे नहीं ना. You need land to step. If you want to produce this, first you need land. फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड की जरूरत है. Then someone has to work that, right? Labor. फैक्ट्री बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, कैपिटल. एंड लास्ट थिंग इज माइंड. दिमाग भी तो जरूरी है ना. दैट इज
एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा. सो दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रीवियसली रिमेंबर, प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट था उसमें था कि these are the three things that are considered as factors of production, but the recent definition, present definition is 1 2 3 4. चारों चीज को इंक्लूड करके हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ हमने बता दिया एक चीज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दूसरा पॉइंट बेसिक चीज है, बेसिक से पढ़ेंगे फिर बड़ा पढ़ेंगे. रिमेंबर हियर द एंटायर सिस्टम is owned by private. Means government doesn't dive into, or government doesn't do this production process. They don't involve themselves. They don't involve themselves in production process. They work as a facilitator. They say that we will construct road. We will provide you electricity. We will provide you safety and security. Now, Mr. Rajiv Chauhan, if you want to produce, then produce. जो आपको प्रोड्यूस करना है, स्टाइलस बनाना है बनाओ, टीवी बनाना है बनाओ, एरोप्लेन बनाना है बनाओ, whatever you want to produce, you can produce. Got it? It's up to you. There is no restriction as such. But यहां पे गवर्नमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, याद रखिए. So the entire system is based on this. कंप्लीट जो सिस्टम है वो प्रॉफिट पे रन करता है. इफेक्टिवनेस प्रॉफिट से पता चलता है. नो, दिस अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, इफ यू सी देम, सी देयर हिस्ट्री, दे आर कॉल्ड कैपिटलिस्ट कंट्री. द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दोज कंट्री इज वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टेड. गवर्नमेंट डजंट प्रोड्यूस. नहीं, टॉपिक नहीं हुआ, बीच में अटक गया.